Dear students, welcome in my class. Today I will explain the second chapter of Flamingo, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anish Jung, who was born in Rourkela in 1964 and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anish Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad, and has authored several books. This is an excerpt from her book titled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. Here, she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn their children to a life of exploitation. यहाँ अनीश जंग इन बच्चों के भयंकर गरीबी और परंपराओं का विश्लेषण करती हैं जिन्होंने इन बच्चों को इस तरीके के शोषण भरे जीवन को बिताने के लिए मजबूर किया है. These excerpts are taken from the author's book Lost Spring: Stories of Stolen Childhood, खोए हुए बचपन की कहानियाँ. This chapter is divided into two parts, continuing the author's first-hand experience with poverty and traditions prevailing in some parts of India. The first part describes the plight of the poor ragpickers of सीमापुरी. यह चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है और पहले पार्ट में सीमापुरी के जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बिनने वाले गरीब लोग हैं, उनकी दुर्दशा पर वर्णन किया गया है. एंड द सेकेंड पार्ट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद. और जो सेकेंड पार्ट है उसमें फिरोजाबाद में बेंगल मेकर्स जो चूड़ी बनाने वाले हैं उनकी बड़ी मिजरेबल कंडीशन का जिक्र किया गया है. There are two characters in the first part, Sahib and narrator herself. Sahib is a ragpicker from Simapuri, Delhi. He has simple dreams. He believes in promises made to him. दिल्ली के सीमापुरी का एक गरीब लड़का है जो कूड़ा बिनता है और सिंपल से सपने देखता है, जो भी वादे उससे किए जाते हैं उन पर भरोसा करता है. And the second character, narrator herself, Anish Jung. She is a social worker and she describes the plight of the slum dwellers and honestly portrays their pitiable lives. Let's read the chapter and be careful about every line because the whole lesson is very important. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में एक रुपया मिल जाता है. This is the first statement of this part. Why do you do so? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. यह सब क्यों करते हो तुम? मैं साहिब से पूछती थी जब वह रोज़ मुझे मॉर्निंग में मेरे पड़ोस के गार्बेज डंप के पास सोना ढूंढते हुए मिलता था. स्क्राउंजिंग मीन्स सर्चिंग समथिंग. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. काफ़ी पहले साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था. सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में रहते हुए हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. ऐसी मेमोरी में अब उसको अपने घर की याद बिल्कुल नहीं आती. There were many storms that swept away their fields and homes. कई सारे वहाँ पर तूफान आए जिसने उनके खेत और उनके घर को बर्बाद कर दिया. His mother tells him, उसकी माँ उसको ऐसा बताती है. That's why they left. इसीलिए उन्होंने वहाँ छोड़ दिया, ढाका छोड़ दिया. Looking for gold in the big city where he lives now. और सोने की तलाश में बड़े शहर में आ गए जहाँ वह अभी रह रहे हैं. Means जो साहिब नाम का लड़का है वो पहले ढाका में रहता था और अपनी रोजी रोटी की तलाश में वह बड़े शहर में आ गया. अब वह कूड़े के ढेर में कूड़े में कुछ ढूंढता है ताकि उसे कुछ
उपयोगी चीज़ मिल जाए। I have nothing else to do, he mutters, looking away. इधर उधर देखते हुए बोलता, वो धीरे से बोलता, mutters means speak silently, धीरे धीरे बोलता कि मेरे पास करने के लिए भी तो कुछ नहीं है। I have nothing else to do. Go to school, I say glibly. Glibly means articulately but insincerely. मैंने ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे उसको बोल दिया, क्यों, कुछ करने के लिए क्यों नहीं है, गो टू स्कूल, स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत मुझे यह भी महसूस हुआ कि जो एडवाइस मैंने उसको दी थी वो कितनी हॉलो थी, कितनी उथली थी, उसमें कोई, मेरी एडवाइस में कोई दम नहीं था। एडवाइस हैज़ नो सब्सटेंस। मैंने बोल तो दिया स्कूल चले जाओ, लेकिन मेरी एडवाइस में कोई भी दम नहीं था। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, लेकिन फिर भी उसने बोला कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे लोग कोई स्कूल बना देंगे, गवर्नमेंट कोई स्कूल बनाएगी तो मैं भी चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैं थोड़ा मजाक के मूड में उससे पूछती कि अगर मैं स्कूल खोलूँगी क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी ज़ोर से मुस्कुराता और बोलता, हाँ मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं भी आऊँगा। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद वह मुझे मेरी ओर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। मैं उसको दिखी तो वो मुझे देख के दौड़ता हुआ आया। इज योर स्कूल रेडी? तो उसने बोला, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, मैंने बोला स्कूल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड, और बड़ी शर्मिंदगी महसूस की कि मैंने उससे वो प्रॉमिस कर दिया था जो मैं निभा नहीं पा रही थी। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world, लेकिन मेरी तरीके के कई सारे promises abound in every corner of his bleak world, उसके उजाड़ संसार में ऐसे promises की तो बाढ़ थी, भरमार थे ऐसे promises, जो भी आता वो promise कर जाता। नेता लोग आते, बड़े बड़े समाज सेवी आते, वो सारे लोग आते और प्रॉमिस कर जाते। सो promises like mine abound in every corner of his bleak world, उसके उजाड़ संसार में मेरे जैसे प्रॉमिस के तो बहुत बड़ी एक सीरीज़ थी। बहुत सारे लोग प्रॉमिस करते थे और कभी प्रॉमिस को पूरा नहीं करते थे। अगर प्रॉमिस पूरा किया होता तो यह छोटा सा बच्चा कूड़े के ढेर में तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, काफ़ी महीने उससे जान पहचान होने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, उसने नाम बताया कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, वह तो जानता भी नहीं था कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह अपने नाम का मतलब जानता तो उसको पता चलता कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे संसार का मालिक होता है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसे अपने नाम का मतलब पता चलता तो उसे इस बात का विश्वास करने में बहुत टाइम लगता, बहुत कठिनाई होती कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ऐसी हालत में अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, इस बात से बेखबर था कि उसके नाम का क्या मतलब होता है। ही रोम्स द स्ट्रीट, वह गलियों में घूमता भटकता था। विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और उसके जो दोस्त थे वो बहुत सारे लोग, लड़के थे, वो भी सब नंगे पैर ही चलते थे। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड एंड डिसअपियर एट नून, जो सुबह के टाइम में मॉर्निंग बर्ड की तरह दिखते थे एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते डिसअपियर हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, कई महीनों में, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, जब मैं उनको मिलने लगी, उनके साथ जान पहचान बनाने लगी, तो कई महीनों में मैं उनमें से प्रत्येक बच्चे को जो बेयर फुट वहाँ पे घूमता था, उनमें से लगभग हर बच्चे को मैं जानने लगी। वट आंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, उनमें से एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिडंट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, क्योंकि मेरी माँ उनको सेल्फ से नीचे निकालती ही नहीं है। ही आंसर सिंपली, उसने बड़ी सिंपली आंसर भी दे दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। जब मैंने पूछा कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी, उसने बोला मेरी माँ चप्पलों को रैक से नीचे नहीं निकालती,
तो एक दूसरा लड़का था जिसने जूते पहने हुए थे और वो जूते मैच नहीं कर रहे थे, अनमैच जूते पहने थे। उसने बोला अगर इसकी माँ चप्पल निकाल भी देगी तो यह चप्पल पहनेगा नहीं, यह उन चप्पलों को फेंक देगा। When I comment on it, जब मैंने इस बात पर कमेंट किया, he shuffles his feet, उसने अपने पैरों को रगड़ा, and says nothing, और कुछ नहीं कहा। I want shoes, मुझे जूते चाहिए, says a third boy, एक तीसरे लड़के ने बोला, who has never owned a pair all his life, जिसने अपने पूरे जीवन भर एक जोड़ी जूते कभी नहीं रखे थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. देश में जब मैं ट्रैवल करती हूँ, ट्रैवलिंग इन द अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में भ्रमण करने के बाद मैंने कई बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा। इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह उनका लैक ऑफ मनी नहीं था, वो इसलिए नंगे पैर नहीं चलते थे कि उनके पास पैसे नहीं थे, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, बल्कि उनके यहाँ नंगे पैर रहने का एक ट्रेडिशन हुआ करता था। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, यह एक एक्सप्लेनेशन है, नंगे पैर रहने का एक एक्सप्लेनेशन यह भी है। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये जो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, लगातार गरीबी की जो स्थिति है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या यह एक एक्सक्यूज़ है कि हम नंगे पैर चलते हैं, और इसलिए चलते हैं क्योंकि यह हमारी एक ट्रेडिशन है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। अनीस जंग बताती हैं कि उनको एक कहानी याद है जो उदीपी में रहने वाले एक आदमी ने उनको सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वह जब स्कूल जाता था तो पास के ही इस टेम्पल से होके जाता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। इन दैट टेम्पल हिज फादर वॉज डेप्यूटेड एज अ प्रीस्ट। वहाँ पर पुजारी का काम करते थे उसके पापा। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वह छोटा सा बच्चा थोड़ी देर के लिए टेम्पल में रुक जाता, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान उनको एक जोड़ी जूते दिला दें। 30 years later I visited his town and the temple. 30 साल के बाद मैं उसी टाउन में गई और टेम्पल में भी गई, which was now drowned in an air of desolation, जो टेम्पल अब बिल्कुल उजाड़ हो गया था। In the backyard, टेम्पल के पीछे, where lived the new priest, अब एक नया पुजारी रहता था। There were red and white plastic chairs, वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा बच्चा ग्रे यूनिफॉर्म को पहन के, वियरिंग सॉक्स एंड शूज एंड सॉक्स पहन के, अराइव्ड पेंटिंग, वहाँ पर हाँपता हुआ आया, थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, इस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे एक दूसरे लड़के की भी प्रेयर याद आई, हैड मेड टू द गॉडेस, उस प्रेयर में उसने देवी माँ से बोला था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उनको एक जोड़ी जूता मिल गया था। उस लड़के को जब एक जोड़ी जूता मिला तो उसने फिर भगवान से, देवी माँ से प्रार्थना की, और उस प्रार्थना में बोला, लेट मी नेवर लूज देम, कि अब मेरे ये जूते कभी खोए ना। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, अब देवी माँ ने उसकी प्रार्थना पूरी कर दी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के लड़के की तरह छोटे लड़के नाउ वोर शूज, अब वहाँ पर जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में कई सारे लड़के ऐसे हैं जो कूड़ा बिनते हैं, रैग पिकर्स हैं, वो अभी भी बिना जूतों के ही रहते हैं। अभी भी उनके पास कोई जूता नहीं है, कोई सैंडल, कोई चप्पल्स नहीं है, वह बिना जूतों के, बिना चप्पल के, नंगे पैर हर मौसम में चलते हैं। माई एक्विंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरी जो पहचान थी इन बेयरफुट रैग पिकर्स से, वह मुझे इनके निवास स्थान सीमापुरी तक ले जाती है, मैं वहाँ जाती हूँ। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के पेरीफेरी में है, आउटर एरिया में है, आउटर पार्ट में है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट,
मिटाफोरिकली। लेकिन मिटाफोरिकली करेक्टरिस्टिकली यह जो सीमापुरी है यह लाक्षणिक रूप से दिल्ली से बहुत दूर है, मीलों दूर है। यह एक तरीके का कमेंट किया गया है कि दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली से बहुत दूर है, दिल्ली के आउटर पार्ट में है। लेकिन अगर देखा जाए मेटाफोरिकली, इसके लक्षण देखे जाएं तो कहीं से भी नहीं लगता कि सीमापुरी दिल्ली के आउटर पार्ट में, आउटर एरिया में है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. अनीश जंग tells in this line that कि जो लोग भी 1971 में 1 से पहले बांग्लादेश से यहाँ आए, वो सब लोग यहाँ पर स्क्वेटर्स में रहते हैं, बिना अधिकार के रहते हैं। ऐसी ज़मीन में उन्होंने कब्जा कर रखा है जिस पर उनका कोई अपना अधिकार नहीं है और अनाधिकृत तरीके से वो यहाँ पर रहते हैं। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, साहिब के परिवार भी उन परिवारों में एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, जब ये लोग पहले आए थे तब वो बताते हैं कि सीमापुरी बिल्कुल जंगल था, वाइल्डरनेस था, उजाड़ था, कुछ नहीं था यहाँ पर। इट स्टिल इज, अभी भी यह उजाड़ ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पिकर्स। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मड है। मड मीन्स कच्चे मकान से यह बना हुआ है और उस पर एक टिन या तिरपाल की छत है और यहाँ का जो सीवर लाइन है वह अच्छी नहीं है और यहाँ की ड्रेनेज की स्थिति भी अच्छी नहीं है और यहाँ पर लगभग 10,000 रैक पिकर्स अभी रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain. ये लोग जो यहाँ रहते हैं वो कम से कम 30 इयर्स से ज़्यादा साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के रहते हैं, विदाउट परमिट्स के रहते हैं और लेकिन इनके पास एक राशन कार्ड होता है जिसमें इनके नाम होते हैं ऑन वोटर्स लिस्ट के अकॉर्डिंग, और उसकी वजह से इनको थोड़ा सा राशन खरीदने का मौका मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। बहुत बड़ी बात बोली है कि पहचान की तुलना में सर्वाइवल के लिए, जीवन जीने के लिए भोजन ज़रूरी है। पहचान से क्या करेंगे? इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris. एक बहुत ही फटे पुरानी साड़ी पहनी हुई एक महिला ने बहुत बड़ी बात कही। वो बोलती है कि हमारे पहचान से ज़्यादा हमारे लिए भोजन है, और अगर हम दिन के अंत में किसी भी तरीके से अपने परिवार को खाना खिलाकर सुलाते हैं और वह जब सोते हैं उस समय उनका पेट भूख के मारे दर्द नहीं करता, और ये उस लाइफ से, उस पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा अच्छी है, जिसमें हमारी पहचान तो है, हमारे पास खेत हैं, हमारे पास अपनी ज़मीन है, लेकिन उन खेतों में हमारे पास कोई ग्रेन नहीं होता। तो ऐसे जीवन जीने से तो बिना पहचान का जीवन, जिसमें कम से कम हमें भरपेट भोजन मिलता है, ऐसा जीवन कई ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा उस महिला ने बोला था। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने इतना अच्छा सुंदर अपनी लैंड क्यों छोड़ी, इतने हरे भरे खेत और रिवर्स को क्यों छोड़ा, wherever they find food, जहाँ भी उनको भोजन मिलता है, they pitch their tents that become transit homes। तो उसने बोला कि जहाँ उनको भोजन मिलता है वो वहीं चले जाते हैं और वही उनका घर बन जाता है। वहाँ पर वो लोग अपना टेंट गाड़ते हैं और अपना एक ट्रांजिट होम बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उनके बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बाद में वो जो बच्चे बड़े होते हैं वो उनकी सर्वाइवल की लड़ाई में बराबर के पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और वो ये भी बात बताते हैं कि सीमापुरी में सर्वाइवल मीन्स रैक पिकिंग, कबाड़ी का काम करना, कबाड़ बिनना। थ्रू द ईयर्स it has acquired the proportion of a fine art,
कई वर्षों से सीमापुरी ने एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन, बहुत बड़ा आकार फाइन आर्ट का बना लिया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज जो है वो गोल्ड की जैसा है, सोने की तरह उनको कचरा लगता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और यही उनका रोजी रोटी है। और रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर में एक छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, जबकि जो छत है वो लीक करती है, उसमें से पानी अंदर आता है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे भी अधिक बहुत कुछ है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, साहिब ने बोला कि कभी कभी मुझे गार्बेज डंप में, गार्बेज हीप में 1 रुपये का नोट मिलता है और कभी कभी 10 रुपी नोट भी मिल जाता है। और ऐसा कहते हुए हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक रही थी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको गार्बेज के हीप में सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का मिलता है, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो तुम किसी और एक दूसरे सिक्के की तलाश में उसको बंद क्यों कर देते हो। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि गार्बेज में ढूंढने का काम का मतलब बच्चों के लिए कुछ और होता है, और गार्बेज ढूंढने का मतलब उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और होता है। कबाड़ बीनना बच्चों के लिए कुछ और है, और सेम वही चीज़ उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ होती है। उनको लगता है कि हम कूड़े को खोलेंगे तो उसके अंदर से कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी, तो रैप्ड इन वंडर उनको ऐसा लगता है। फॉर द एल्डर इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और पेरेंट्स को लगता है कि यह तो उनके सर्वाइवल के लिए, उनके अस्तित्व के लिए है। वो जब गार्बेज को ढूंढते हैं, रैक पिकिंग करते हैं, तो उसमें उनको अपना अस्तित्व समझ में आता है। लेकिन बच्चे जब गार्बेज ढूंढते हैं, जब वो कूड़ा बीनते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई आश्चर्य में लिपटी हुई कोई वंडरफुल चीज़ भी मिल सकती है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक दिन सुबह सुबह मैंने देखा कि साहिब पास के क्लब के दीवार वाले गेट पर खड़ा था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और 2 वाइट यूनिफॉर्म पहने हुए 2 आदमियों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, उसने धीरे से बोला कि मुझे भी यह गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उसको देख के लग रहा था कि वो फेंस के दीवार के पीछे से टेनिस खेलते हुए इन लोगों को देखने में बहुत संतुष्ट था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, उसने बाद में बोला कि जब यहाँ कोई नहीं होता तो मैं गेट के अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर मुझे वहाँ पर झूले को झूलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, मैंने देखा कि उस दिन साहिब ने टेनिस शूज पहने थे जो उसके डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट से, बहुत ही गंदी सी कमीज और नेकर के साथ स्ट्रेंज लग रहा था, मैच नहीं कर रहा था, अनमैच था। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, जब मैंने उसको देखा तो उसने एक्सप्लेन करने के तरीके से बोला कि ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, और हकीकत ये थी कि ये जूते किसी अमीर परिवार के लड़के के थे जिसने शायद इसमें छेद होने के कारण इसको पहनने से मना कर दिया था। डिस्कार्डेड मीन्स रिजेक्टेड। डज नॉट बॉदर हिम, इससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि जो बच्चा नंगे पैर चलता हो, इवन शूज विद अ होल इन अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए होल वाला जूता भी सपने सच होने जैसा था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन उसने टेनिस वाले शूज़ तो पहन लिए थे, लेकिन जो टेनिस का गेम वो देख रहा था इतने ध्यान से, इतनी उत्सुकता से, वह उसकी पहुंच से परे था, उसको वो नहीं खेल सकता था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह मैंने जब देखा तो साहिब मिल्क बूथ की ओर जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का कनिस्तर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस,
एक दूर दुकान की ओर इशारा करते हुए उसने बोला कि अब मैं चाय की दुकान में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और इसके लिए मुझे 800 रुपीज़ दिए जाते हैं और मुझे भोजन दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम जहाँ जॉब करते हो तुमको वो जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी मैं देख सकती थी। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, आज उसके चेहरे से वो लापरवाही, वो बेपरवाही वाला लुक ख़त्म हो गया था। द स्टील कैनिस्टर सीन्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। स्टील का जो कनस्तर था वो आज उसको भारी लग रहा था, और वह कनस्तर उसके उस बैग की तुलना में भारी था जो बैग उसका खुद का था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका था तो बैग हल्का था, कनस्तर किसी दूसरे का था तो वह उसको भारी लग रहा था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, क्योंकि ये जो कनस्तर उसने पकड़ा था यह कनस्तर उस मालिक का था जिसके दुकान में वह काम करता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, आज साहिब जब किसी दूसरे के अंडर काम करने लग गया तो साहिब अब खुद का मालिक नहीं रह गया, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी का बोझ आ गया और एक दूसरे मालिक के अंदर काम करने का भी भार उसके कंधों में आ गया। So dear students, it's all for this part of the Lost Spring. The next part you will watch in the next video. Till then, take care. Goodbye.